خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اراکین اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اور ڈپٹی اسپیکر ثریا بی بی بھی اسمبلی پہنچ گئے ہیں۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے 4 بجے تک جاری رہے گی۔ مزید جانتے اپنے نمائندے نواب شیر سے۔ نواب شیر، اپڈیٹ کیجیے گا، اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں سینٹ کے 11 نشستوں پر جو ہے وہ 26 امیدوار جو ہے وہ اس میں میدان میں ہے، لیکن مقابلہ جو ہے وہ 22 امیدواروں کے درمیان ہے، کیونکہ جو 4 ناراض اراکین تھے تحریک انصاف کے، ان کو تحریک انصاف کے جو رہنمائے انہوں نے راضی کر لیا اور وہ جو ہے وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے، اور اب مقابلہ جو ہے وہ 22 ممبران کے درمیان ہے، جن میں سے 7 جنرل نشستوں پر جو ہے وہ 14 امیدوار آمنے سامنے ہے، جبکہ خواتین کے 2 نشستوں پر 3 امیدوار آمنے سامنے، اور اسی طرح ٹیکنوکریٹ کے 2 نشستوں پر جو ہے وہ 5 امیدوار آمنے سامنے ہے۔ پولنگ کا عمل جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور ارکان اسمبلی جو ہے وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ 145 جو اراکین اسمبلی ہے وہ آج سینٹ کے 11 امیدواروں کو جو ہے وہ ووٹ پول کریں گے، اور اس وقت کچھ اراکین اسمبلی اور کچھ جو سینٹ کے امیدوار ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، جن میں جو ڈپٹی اسپیکر ہے ثریا بی بی، سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی، اور اسی طرح اگر بات کی جائے امیدواروں کے تو جے یو آئی کے عطاء الحق درویش، تحریک انصاف کے مرزا افریدی اور فیصل جاوید بھی جو ہے وہ اس وقت اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ مواد بھی اس وقت، انتخابی مواد بھی اس وقت موجود ہے، الیکشن کمیشن کا عملہ بھی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور انتخاب کا عمل جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور ارکانی اسمبلی جو ہے وہ اس وقت اپنا ووٹ پول کر رہے ہیں۔ پولنگ کا یہ عمل جو ہے وہ بغیر کسی وقفے کے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ ہماری ادھر کچھ رہنماؤں سے بات بھی ہوئی ہے، ان کو اپوزیشن اور حکومت دونوں رہنماؤں سے بات کی ہے، تو ان لوگوں میں نے ان سے یہی پوچھا ہے کہ 5-6 کے فارمولے پر عمل درآمد ہوگا، تو ان دونوں کی جانب سے مثبت اشارے دیے گئے، اور دونوں کا یہی کہنا ہے کہ امید ہے کہ 5-6 کے دونوں جو 5-6 کا جو فارمولہ ہے ان پر عمل درآمد ہوگا۔ اپوزیشن بھی اس پر عمل درآمد کرے گی، اور حکومتی اراکین بھی جو ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے اس پر 5-6 کے اس پر عمل کریں گے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مرزا افریدی سے ہم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ بہت سارے جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ آپ کے سینیٹر بننے پر کافی ناراض ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ مجھے بانی تحریک انصاف نے جو ہے وہ سینیٹر کے لیے منتخب کیا ہے، تو میں ان کے فیصلے کی تائید کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے جو ہے میں سینٹ کا امیدوار ہوں۔ تو وہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ آج جو ہے ان کو ووٹ پڑیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ پولنگ کا باقاعدہ عمل شروع ہو چکا ہے، اور پولنگ کا یہ عمل جو ہے وہ بغیر کسی وقفے کے شام 4 بجے تک جاری رہے گا، اور اراکین اسمبلی جو ہے وہ وقفے سے جو ہے وہ اسمبلی پہنچ رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ کے امیدوار ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسمبلی پہنچ رہے ہیں۔ اور اس وقت اگر بات کی جائے سیکیورٹی کے، تو سیکیورٹی کے بھی جو ہے اس وقت ہے اسمبلی میں کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی باری نفری جو ہے وہ اسمبلی کے اندر اور باہر جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ جی اچھا نواب شیر، یہ بتائیے گا 5-6 کا فارمولہ تو طے ہے، لیکن گورنر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم زیادہ سیٹیں بھی لے سکتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آئی ہو جس میں اپوزیشن کی جانب سے حکومت سے رابطہ کیا گیا ہو اس دوران؟ ابھی تک تو اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ گورنر کا یہ کہنا تھا کہ اگر حکومتی اراکین 5-6 کے فارمولے پر عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر ہم یہ آپشن استعمال کر سکتے، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک اس طرح کا کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور جس طرح کہ میں نے بتا دیا ہے کہ میرے اپوزیشن کے رہنما اراکین اسمبلی سے بھی بات ہوئی ہے، اور حکومتی اراکین اسمبلی سے بھی بات ہوئی ہے، اور ان سے یہی کہا ہے کہ آپ لوگ 5-6 کے فارمولے پر عمل درآمد کریں گے۔ اگر آپ دونوں کے درمیان طے ہوا تو سابق اسپیکر جو تحریک انصاف کا رہنما مشتاق غنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ 5-6 کے فارمولے پر ہم عمل درآمد کریں گے۔ اسی طرح جو اپوزیشن جمعیت علماء اسلام کا جو رکن صوبائی اسمبلی ہے لطف الرحمان، جو کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، ان سے بھی جب میں نے بات کی ہے کہ آپ کو توقع ہے کہ 5-6 کے فارمولے پر عمل درآمد ہوگا، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ 5-6 کے فارمولے پر ہی عمل درآمد ہوگا، اور ہم جو ہمارے مقررہ جو سیٹیں وہ سیٹیں ہمیں آج ملے گی۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت اراکین ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں جو 5-6 کا فارمولہ ہے ہم اس پر پوری طرح
अमल दरामद करेंगे। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा है, वो भी असम्बली के अंदर जो है वो मौजूद है और लग यही रहा, बज़ाहिर लग यही रहा है कि वो भी 5-6 के फार्मूले पर अमल दरामद के लिए ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन अभी जब है वो अंदर है और अभी तक उसने मीडिया से भी कोई बात नहीं की और इस तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई कि 5-6 के फार्मूले पर अमल दरामद नहीं होगा। गवर्नर ने जो बात की थी उसने ये इस कॉन्टेक्स्ट में कही थी कि अगर हुकूमत अरकान 5-6 के फार्मूले पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो तब हम ये ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, खुर्रम ज़ीशान जिन्होंने दस्तबरदार होने से इनकार किया था, उनके हवाले से पीटीआई की जानिब से अभी तक क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, खुर्रम जो 5 कवरिंग मेंबरान थे उनमें से तो 4 को तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने राज़ी कर लिया, लेकिन एक खुर्रम शहजाद है जो किसी भी सूरत में दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आला है वो मुसलसल उनसे रब्ते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल मंजर आम से गायब है और अभी तक उनके हवाले से कोई बात या कोई इस तरह का वाक़या सामने नहीं आया और ना ही कोई इस तरह की बात जो हुकूमती नुमाइंदे वो कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके मंजर से गायब है और अभी तक कोई बात इस तरह के उनके हवाले से सामने नहीं आई है। तो नवाब साहब, बाकी कवरिंग उम्मीदवारों को तो मना लिया गया था और वो दस्तबरदार भी हो गए थे, क्या इनको मनाने की कोशिश की गई अभी तक? खुर्रम ज़ीशान के मुताबिक उनका यही कहना है कि उनको जो है वो मनाने की कोशिश नहीं की गई थी, इसी वजह से वो दस्तबरदार भी नहीं हुए। लेकिन हुकूमती अरकान और वज़ीर आला की जानिब से जो वज़ीर आला के हल्के हैं उनका यही कहना था कि हमने उनसे रब्ता करने की बहुत कोशिश की, उनको मनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल मंजर से गायब है। ना वो हमारे फ़ोन का जवाब दे रहे, ना वो किसी चीज़ का जवाब दे रहे और उनके फ़ोन नंबर भी बना रहे, इसी तरह वो बिल्कुल मंजर से उनसे कोई रब्ता नहीं है। तो यही वजह है कि अभी तक जो है उनको ना राज़ी कर लिया और ना ही वो अभी तक इलेक्शन से दस्तबरदार हुए हैं। तो यही वजह है कि आज बिला मुकाबला जो है वो इंतखाबात नहीं हो रहे और बाकायदा पोलिंग के ज़रिए जो है वो इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है और बाकायदा पोलिंग के ज़रिए जो है वो सारे सेनेटरों का इंतखाब किया जाएगा, वरना पहले ये तय किया जा चुका था कि 5-6 के फार्मूले के तहत जो है वो बिला मुकाबला सारे सेनेटर मुंतखब होंगे, लेकिन उसके राज़ी ना होने की वजह से जो है वो अब ये इंतखाबात हो रहे हैं और पोलिंग का जो बाकायदा अमल है वो शुरू हो चुका है। और अच्छा, ये भी कहेगा 22 मेंबरान के दरमियान मुकाबला है, तो गोल्डन नंबर क्या है कामयाबी के लिए आज? जी, गोल्डन नंबर कामयाबी के लिए तो अभी तक इस तरह का कोई वो नहीं है कि गोल्डन नंबर क्या है, लेकिन जनरल जो सीट है उनके लिए एक उम्मीदवार के लिए 19 अरकान सूबाई असम्बली का वोट डालना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह ख़वातीन और टेक्नोक्रेट के लिए जो है वो 45 से 49 तक के जो अरकान सूबाई असम्बली है उनका वोट डालना जो है वो ज़रूरी है। तो इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जारी है और बाकायदा तौर पर अरकान सूबाई असम्बली जो है वो हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ कल जो नए मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली है वो भी पहुँचना शुरू हो गए हैं और वो भी हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त ऐवान में 145 अरकान है जिनमें तहरीक इंसाफ के 92 जबकि जो अपोजिशन के है वो 52 है। तो इस 5-6 के फार्मूले पर जो है वो कवरिंग मेंबरान नाराज़ भी हुए थे। उन लोगों का यही कहना है कि अक्सरियत हमारी असम्बली में है तो हम 5-6 के फार्मूले पर क्यों अमल दरामद करें, क्योंकि हमें 5-6 से ज़्यादा हमें 7-8 सीटें मिलनी चाहिए। तो यही वजह है कि वो इस 5-6 के फार्मूले पर काफ़ी नाराज़ थे और काफ़ी नाराज़गी और काफ़ी इख्तिलाफ़ात के बाद जो है उनमें से 4 को जो है वो मना लिया गया है, लेकिन जो कि इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुके हैं, लेकिन एक जो है वो अभी तक दस्तबरदार नहीं है और वो बिल्कुल मंजर आम से बिल्कुल गायब है, जिनसे मुसलसल रब्ते की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन उनका कोई अता पता अभी तक नहीं चल रहा। अच्छा, आपकी अरकान असम्बली से बात हुई, उनकी जानिब से क्या कहा गया, क्या वोट के हवाले से, वोटिंग के हवाले से और खुर्रम ज़ीशान के हवाले से उनका क्या कहना था? जी बिल्कुल, जिस तरह के मैंने पहले भी बता दिया था कि हमारी जो है वो अरकान सूबाई असम्बली से बात हुई है, तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली का खुर्रम ज़ीशान के हवाले से यही कहना है कि आज कोई नाराज़ नहीं होगा और सारे जो है वो बानी तहरीक इंसाफ की जो लिस्ट है उनके मुताबिक और 5-6 के फार्मूले के तहत ही जो है वो अमल दरामद होगा और हम अपने उम्मीदवारों को ही जो है वो वोट देंगे और आज कोई नाराज़गी जो है वो नहीं होगी, चाहे वो खुर्रम ज़ीशान हो चाहे वो दूसरे अरकान सूबाई असम्बली हो, तो आज कोई नाराज़गी नहीं होगी। और उन लोगों का यही कहना था कि उम्मीद कर रहे हैं कि आज 5-6 के फार्मूले पर अमल दरामद भी होगा और बानी तहरीक इंसाफ की जो लिस्ट है, जो उम्मीदवार है, सारे वोट उनको ही
जो है वो आज पढ़ेंगे। तो ये अरकान सूबाई असम्बली का कहना था, हुकूमत अरकान सूबाई असम्बली का। अच्छा, और अभी तक कितने अरकान असम्बली पहुंच चुके हैं, कितने वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं? अभी तक तो तकरीबन 10-15 के करीब अरकान सूबाई असम्बली जो है वो पहुंच चुके हैं, और अभी वाज़ेह नहीं है क्योंकि अंदर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है, मीडिया पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, अंदर किसी को जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा रही। पहले तो असम्बली के हाथे में भी मीडिया को इजाज़त नहीं दी जा रही थी, हम बाहर रोड पर जो है वो सारी मीडिया कवरेज करती रही, लेकिन इसके तकरीबन 2-3 घंटे बाद ही जो है वो असम्बली के हाथे के अंदर मीडिया को जो है वो कवरेज की इजाज़त दी गई है। और अब भी हम जो है वो असम्बली हाल के बाहर जो असम्बली का अहाता है वहाँ पर मौजूद है और वहाँ से कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को बिल्कुल भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो अभी तक कोई पता नहीं चला कि अभी तक कितने वोट जो है वो पोल हो चुके हैं, लेकिन तकरीबन 10-15 के करीब अरकान सूबाई असम्बली जो है वो इस वक्त पहुँच चुके हैं और मज़ीद जो है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवाब शेर, अपडेट करने के लिए। आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। आप की बात कर लेते हैं। पंजाब से सेनेट की एक जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग जारी है और मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम, पीटीआई के अब्दुल सत्तार समेत 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। मजीद जानते इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से। नज़ीर, बताइएगा यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितने वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं? जी देखिए, पंजाब से सेनेट की एक जनरल नशिस्त के लिए इलेक्शन जो है वो इस वक्त जारी है। सुबह 9 बजे जो है पोलिंग शुरू हुई थी और ये शाम 4 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। शरीफुल्ला जो इलेक्शन कमिश्नर हैं पंजाब के, वो इस इजलास की जो है वो सदारत कर रहे हैं। मुख्तलिफ औकात में जो है वो मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं इंडिविजुअली और वो वोट करके कास्ट करके जो है वो चले जाते हैं और अब तक 140 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि दोनों जमातें जो है उन्होंने कोशिश की है कि अच्छे तरीके से ये वोट कास्ट हो, कोई वोट जो है वो ज़ाया ना हो, इसके लिए ट्रेनिंग भी करवाई गई, उनको इसके उसूल व ज़वाबित जो है ना वो भी बताए गए थे। चूँकि इसमें ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है कि आप दूसरे को भी जो है वो वोट दे सकते हैं, लिहाजा कोशिश होगी उनकी कि कम से कम वोट जो है वो ज़ाया हों। लेकिन इस चूँकि 371 का ऐवान है, 2 सीटें इस वक्त जो है वो खाली हैं और एक जो है मियाँ असलम जो है उन्होंने ओथ नहीं लिया अभी तक, जबकि एक नशिस्त जो है वो उस पर अदालती हुक्म इम्तनाई की वजह से वहाँ जो है इलेक्शन नहीं हो सका। लिहाजा 369 जो लोग हैं वो वोट कास्ट करेंगे और 185 जो है वो जीतने के लिए ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के पास ही सिर्फ 229 वोट है, जबकि पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी जमातें वो भी इनके साथ है। लिहाजा भारी अक्सरियत से जो है वो हाफिज़ अब्दुल करीम जो उम्मीदवार हैं और जमीयत अहले हदीस के अमीर भी हैं, उनके जीतने के जो है वो काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं और उसमें बहुत कम अरसा जो है वो लगेगा कि ये वोट जो है जब मुकम्मल हो जाएगा और 4 बजे है बाकायदा तौर पर इसका ऐलान इसकी कैलकुलेशन के बाद जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।